Welcome everyone to RN Talks platform yet again. So today we are going to be discussing something very different, and this is called locus of control. Now you'll ask me, what is locus of control? Before I go on to explain to you what is locus of control, I just want to explain to you what do you understand by the word locus. Locus means a particular position or a place where something usually occurs or is situated. Now, locus of control is controlled by two factors: external locus of control and internal locus of control. Now, the next question you're going to be asking me is, what is external locus of control and what is internal locus of control? Okay. So just to make things a little easier, as I always go bilingual, I'll just interpret this. लोकस माने आप जहां जिस केंद्र बिंदु से आप काम करते हैं उसको हम लोकस कहते हैं. एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल माने जो बाहर की शक्तियां हमारे ऊपर काम करती हैं, और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है जो अंदर की शक्तियां, अंदर माने अंदर, हमारे घर के अंदर नहीं, हमारे अंदर, अंदरूनी, हमारी मानसिकता, वो जो काम करती है उसको हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं. और दूसरा है एक्सटर्नल माने जो बाहर के हालात, जो हमारे आसपास वातावरण में जो हो रहा, वो जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं उसको हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं. Now, external and internal, both of them, they work upon us to make us who we are. Outcomes which are outside our control, which are beyond our control, like which are determined by fate and and luck and fate and whatever somebody else or something happens or somebody else does to us, and it is independent of our hard work and our decisions that we have taken. सो जो भी चीजें बाहर से आती हैं, से आपका फेट हो गया, आपकी किस्मत हो गई, ये लक हो गया, या फिर कोई और आपके साथ कुछ करता है, माने आपकी की गई द्वारा चीजें नहीं, बट उससे अलग कोई चीज होती है, तो हम उसको एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं. और जो चीजें हमारे अंदरूनी आती हैं, माने हमने कोई डिसीजन लिया, हमने कोई फैसला लिया, उसका जो रिपरकशन होता है, या हमने कितना श्रम किया है, या हमने कितना हार्डवर्क किया है, उसके ऊपर उसका जो आउटकम होता है वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है. सो आउटकम्स दैट लाई विद इन आवर कंट्रोल, दैट डिटरमाइन आवर हार्ड वर्क एंड द डिसीजंस देयर ऑफ आर नोन एज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. सो आज हम बेसिकली इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे, और आप सोचेंगे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम जाने अनजाने ये सब चीजों को हम अपने आप को इफेक्ट करने देते हैं, एंड दीज आर द थिंग व्हेन दे स्टार्ट अफेक्टिंग अस, दे आल्सो अफेक्ट आवर the way we perform, our anxiety, our stress, our depression quotient, how easily we get depressed, how much we allow others to interfere in our lives and take decisions for us. So all these things impact. So locus of control is very, very important to determine. So moving further from here, internal locus of control is is the belief that events in our life, whether they are good, or all the events, whatever happens, whether they are good or bad, are caused by controllable factors. Now, what are the controllable factors? There are attitude, our preparation, our efforts that we take to do our work. So जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, जो हमारे जिंदगी में कुछ अच्छा या बुरा जो होता है, वो उन शक्तियों के द्वारा होता है जिस पे हमारा नियंत्रण होता है. हमारा खुश होना, हमारा उदास हो जाना, हमारा किसी चीज के लिए तैयारी कैसी है, हमने कितनी मेहनत की है किसी चीज के लिए, हमारा एफर्ट गया है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है.
Now internal locus of control can also, it works upon how you determine your future. What is your hard work, how much you worked hard, and how much you how passionate you are towards your work, your hard work, how much you want to achieve your goal, or whether you are in control of your life and in which direction it is going, how well you choose your friends, how you neglect somebody, who do you make your priority, whom you just remove from the priority list, and how you take responsibility of your actions and consequences thereof. So this is what all determines your internal locus of control. That is you, that is you, that is me. मैं अपने ऊपर कितनी मेहनत करती हूँ, मैं अपना भविष्य कैसे संवारना चाहती हूँ, और सिर्फ बैठ के सोच ही नहीं रही हूँ कि भविष्य संवर जा ना, मैं अपना भविष्य को संवारने के लिए उसके ऊपर मेहनत कर रही हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, और एक जुनून के साथ करती हूँ. क्या मेरा काम मेरा जुनून है? क्या आपका काम आपके लिए जुनून है, कि आप सिर्फ जाते हो, सुबह उठते हो, काम करते हो, मुंह लटकाए वापस आ जाते हो, 9 से 5 की नौकरी है, भाई करना तो करना ही है ना, हम क्या करें, पैसा तो कमाना ही है, कर लो नौकरी. हाउ डज इट मैटर? अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, फिर हम दूसरों को दोष देते हैं. सो आपका कितना जुनून है काम करने में, आप अपना काम कितनी खुशी से करते हैं, क्या आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में है कि नहीं, या आपकी जिंदगी उस डायरेक्शन में जा रही है जहां आप ले जाना चाहते थे. अगेन मैं 3.7 पिक्चर को रेफर करूंगी कि अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियर बनने चले जाओगे तो आप बहुत ही गंदे इंजीनियर बनोगे, और अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर बनने चले गए किसी के प्रेशर से, तो आप बहुत ही गंदे डॉक्टर बनोगे. आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, पर अगेन आप बैठ के अगर से टीचर बन गए तो, और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो भी आप अच्छी टीचर नहीं बन पाओगे, या फिर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो पर आपको इंग्लिश में आपका कमांड एंड कंट्रोल है तो आप मैथ्स टीचर बहुत गंदे बनोगे. सो आप जो करना चाहते हो वो करिए. डू व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. डोंट डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू. एंड और एक बात आती है कि आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं. आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. आज जो मैं करती हूँ, क्या मैं अपने काम की जिम्मेदारी उठाती हूँ कि नहीं उठाती हूँ. इन सब चीजों पे भी बहुत ज्यादा हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है. नाउ जो हमारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं हम उसके ऊपर बात किए ना. एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कैसे आपको इम्पैक्ट करता है. एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल इज द बिलीफ that events in one's lives, whether they're good or bad, are uncontrollable factors such as environment, the place where you're living in, the weather, the people, or the higher power that works upon you. Okay, सो दीज आर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. तो हम अगर ये मान के चलते हैं कि भाई जो मेरे जिंदगी में हो रहा है उसके ऊपर मेरा कोई काबू ही नहीं है, और हर ये सारी चीजें भाई मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे ऊपर कोई काबू नहीं है मेरी चीजों पे, जो भी अच्छा हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है, बुरा हो रहा है तो भी दूसरों की वजह से हो रहा है, उसकी गलती है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तेरे वजह से ऐसा हुआ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है. जैसे अगेन 3.7 में था, he was the I didn't do it. So it's always like I didn't do it, I don't deserve this, why does this always happen to me. So ये जो है कि हमसे बड़ी शक्तियां हमारे ऊपर काम करती हैं, हमारी कोई गलती नहीं है. तो ये सब चीजें when we go into these things, that is what is external locus of control. So I will end my session, this session here, and in my next session, if please wait for it, tomorrow. So we're going to start, our next session will be on this, and don't forget to tell us how you liked this session, and we are looking forward to your inputs and your feedbacks. Please do take some
टाइम आउट टू कमेंट कि आर्यन टॉक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा। हम बहुत उत्सुकता है आपसे सुनने के लिए, और क्या हमारे वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है, जरूर बताइएगा। हम आपके साथ हैं, आज भी, कल भी थे, आज है और कल भी रहेंगे। So with that, I finish off this session, and next session will come on with visions for your future. Stay tuned and be updated. Ta-ta.